السلام علیکم، ایشیا بزنس ویک کے ساتھ میں ہوں رباب اسد۔ پیش خدمت ہے ہفتے بھر کی تجارتی اور اقتصادی خبروں کا منظرنامہ۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر۔ چین پاکستان کا دوست ہے، حکومت کا نہیں۔ حکومت کے جانے اور آنے کا سی پیک پر اثر نہیں پڑے گا، چین۔ تیونس بھارت کا دو طرفہ تعلقات کو گہرا کرنے پر اتفاق۔ قائم مقام گورنر سندھ آغا سراج درانی سے جرمنی کے سفیر مارٹن کوبلر کی ملاقات۔ ماہ اکتوبر میں چین کی پی ایم آئی 51% سے زائد رہی۔ جنوبی افریقہ کے اعلیٰ سطحی وفد کا وزارت دفاع کا دورہ۔ اٹلی بھارت کے ساتھ اقتصادی تعلقات فروغ دینے کا خواہاں ہے، اطالوی وزیر اعظم۔ 5G سروس کی تیاریاں کر رہے ہیں، احسن اقبال۔ ماہ اکتوبر میں چین کی نان مینوفیکچرنگ سرگرمیوں میں سست رفتاری۔ پاکستانی رکشے اب جاپان میں بھی چلیں گے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چین کے ایشین افیئرز ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈویژن ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ چین کی دوستی پاکستان سے ہے، کسی حکومت سے نہیں۔ کسی حکومت کے جانے اور نئی حکومت کے آنے کا سی پیک منصوبے پر اثر نہیں پڑے گا۔ چین کا کہنا ہے کہ کوئی بھی اقتدار میں ہو، چین کو فرق نہیں۔ چین کے لیے اسلام آباد میں حکومت کی تبدیلی سے زیادہ سی پیک منصوبے کی تکمیل اہمیت رکھتی ہے۔ چین کی دوستی پاکستان سے ہے، کسی حکومت سے نہیں۔ ایشین افیئرز ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈویژن ڈائریکٹر کارلی پنگ فو کا کہنا ہے کہ کسی حکومت کے جانے اور نئی حکومت کے آنے کا سی پیک منصوبے پر اثر نہیں پڑے گا۔ منصوبے کی بروقت تکمیل اہمیت رکھتی ہے۔ سی پیک منصوبہ پاکستان، چین دونوں ممالک کے عوام کے لیے اہم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین اقتصادی راہداری کے جاری منصوبوں کی رفتار کم کرنے اور اس میں رکاوٹ نہیں چاہتا، اس لیے پاکستان میں جاری سیاسی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ 50 منصوبوں میں سے 19 منصوبے تکمیل کے مختلف مراحل میں ہیں۔ کوئی طاقت جاری ترقیاتی منصوبوں میں رخنہ نہیں ڈال سکتی۔ کارلی پنگ فو نے کہا کہ چین اقتصادی راہداری منصوبے کے اہم حصے گوادر پورٹ کی تکمیل کے لیے سنجیدہ ہے اور امید ہے کہ گوادر ایئرپورٹ، گوادر ایکسپریس وے سمیت دیگر ترقیاتی منصوبے اس سال کے اختتام تک شروع کر لیے جائیں گے۔ دوسری جانب چینی وزارت خارجہ کے مطابق سی پیک منصوبہ چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کا حصہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ تیونس اور بھارت کے وزرائے خارجہ کے درمیان نئی دلی میں مذاکرات کا انعقاد کیا گیا، جس میں دونوں ممالک نے تعلقات کو گہرا کرنے پر اتفاق کیا۔ تیونس اور بھارت نے نئی دلی میں دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان منعقدہ مذاکرات کے بعد تعلقات گہرا کرنے کے مضبوط ایجنڈے کے قیام پر اتفاق کیا۔ تیونس کے وزیر خارجہ خمیس جنوئی بھارت میں 4 روزہ دورے پر ہیں۔ انہوں نے اپنی بھارتی ہم منصب سشما سوراج کے ساتھ اجلاس کی مشترکہ صدارت کی۔ بھارت کی وزیر خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے اس سے متعلق ٹویٹ بھی کیا، جس میں کہا کہ اجلاس میں شراکت داری کے فروغ اور دو طرفہ تعلقات کو تازہ توانائی فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت شمالی افریقہ کے ملک تیونس کے ساتھ روایتی طور پر قریبی تعلقات اور دوستی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت 370.46 ملین ڈالر کی سطح پر ہے۔ بھارت تیونس کو آٹو موبائل، الیکٹرک اشیاء، میکینیکل انجنز اور نامیاتی کیمیائی مصنوعات وغیرہ برآمد کرتا ہے، جبکہ دوسری جانب تیونس اس کے عالمی فاسفورک ایسڈ کا 50% بھارت کو برآمد کرتا ہے۔ قائم مقام گورنر سندھ آغا سراج درانی سے جرمنی کے سفیر مارٹن کوبلر نے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاک جرمنی دو طرفہ تعلقات، قومی معیشت کے استحکام، سی پیک سمیت دیگر اہم امور پر بات چیت کی گئی۔ قائم مقام گورنر سندھ آغا سراج درانی سے جرمنی کے سفیر مارٹن کوبلر نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی۔ ملاقات میں پاک جرمنی دو طرفہ تعلقات، صوبے میں امن و امان کے قیام، غیر ملکی سرمایہ کاری میں تسلسل سے اضافہ، قومی معیشت کے استحکام، خوشحالی کے ویژن کے مطابق اٹھائے گئے اقدامات، سی پیک منصوبہ اور اہمیت کے حامل دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر ہاؤس کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق اس موقع پر قائم مقام گورنر سندھ نے کہا کہ پاک جرمنی دو طرفہ تعلقات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ صوبے کے مختلف شعبوں میں جرمنی سرمایہ کاروں کی بھرپور دلچسپی سے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ جرمن سرمایہ کاری سے خطے میں غربت اور بے روزگاری کے خاتمے میں مدد یقینی ہے۔ آغا سراج درانی نے کہا کہ چیلنجز اور مشکلات کے باوجود پاکستانی قوم پرعزم اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ قومی معیشت کے استحکام، ترقیاتی کاموں بالخصوص صنعتی علاقوں میں انفراسٹرکچر کی بحالی اور ترقی سے معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری، نجی سیکٹر کے فعال کردار اور صنعتی سرگرمیوں میں تسلسل سے اضافے کے باعث لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آ رہے ہیں۔ قائم مقام گورنر نے مزید کہا کہ صوبے میں زراعت، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، تعلیم، صحت سمیت دیگر شعبے غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش اہمیت کے حامل ہیں، جہاں سرمایہ کاری سے فوری منافع یقینی ہے۔
इसके अलावा जर्मन सरमायाकार कोयला से चलने वाले पावर प्लांट्स में सरमायाकारी कर सकते हैं। चीन के सरकारी डेटा के मुताबिक चीन का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स माह अक्टूबर में 1.6% की सतह पर रिकॉर्ड किया गया। बीजिंग में जारी सरकारी डेटा के मुताबिक चीन का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स माह अक्टूबर में 1.6% की सतह पर रिकॉर्ड किया गया। ये 13वां महीना है जब इंडेक्स 51% से जायद रहा है। अगरचे ये सितंबर में 52.4% और अगस्त में 51.7% के मुकाबले में कम है, लेकिन इसके बावजूद ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तरक्की की जानिब इशारा कर रहा है। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने इंडेक्स में सुस्त रफ्तारी को 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली 8 रोजा नेशनल डे और मिड ऑटम फेस्टिवल की छुट्टियों से मंसूब किया है। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में खिदमाती शोबे में कंपनियों की कारकर्दगी के महकमे के डायरेक्टर शी जाओहुई का कहना था कि इख्तिसादी ऑपरेशंस आम तौर पर मुस्तहकम थे और मयार और कारकर्दगी मुसलसल बेहतर हो रही है। इस हवाले से शी ने कहा, 10月份制造业 PMI 呢，虽然回落了0.8个百分点，但是呢还是总体高于去年同期的0.4个百分点，而且呢也是达到了今年的一个均值水平。那么也就反映出呢这个制造业呢，还是继续延续这个扩张的发展态势。稳中向好的这种运行格局是没有改变的。तवानाई ज्यादा इस्तेमाल करने वाले और आलूदा तरीन शोबों की PMI में 2% पॉइंट्स कमी आई है, जबकि आला टेक्नोलॉजी, साजो सामान की तैयारी और सारिफ अशिया के शोबा आम तौर पर मजमूई मैन्युफैक्चरिंग के मुकाबले में आला सतह पर रहा, जो कि इस जानिब इशारा करता है कि मईशत में मुस्तहकम और मददगार कुव्वतें हैं। इस हवाले से चाइना फेडरेशन ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड परचेजिंग के नायब चेयरमैन काइजिन का कहना था, 高新技术产业和这个先进装备业也都在50以上，所以说他们这些领域的话，这些产业应该说是未来中国经济发展的一些新的动力。它的这种增长的话，无疑即使整个中国经济能够保持一种平稳的增长，速度上能够保持平稳的增长，同时也能够提高整个中国经济的质量和价值。 डेटा जाहिर करता है कि खाम माल की कीमतों में इजाफा करने वाली कंपनियों की तादाद में 40% कमी आई है। कीमतों में कमी अफराते ज़र के दबाव को कम करने के लिए साजगार है। काइजिन ने मजीद कहा, 这种回落对于下游企业减轻成本负担还是有积极作用的。所以说这种价格水平的回落，应该说是上下游之间形成一个协调、协同、协调、平衡发展的这么一个好的局面。 जनूबी अफ्रीका के आला सतही वफ़द ने वजारत दिफा का दौरा किया और वजीर दिफाई पैदावार राना तनवीर हुसैन से मुलाकात की। जनूबी अफ्रीका के आला सतही वफ़द ने वजीर बराए पब्लिक इंटरप्राइज की सरबराही में वजारत दिफा का दौरा किया और वजीर दिफाई पैदावार राना तनवीर हुसैन से मुलाकात की। वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखता है और इसको मुस्तकबिल में फ़रोग़ देने का ख्वाह है। वज़ीर दिफा ने दोनों ममालिक के माबैन दिफाई सनत के ताउन की अहमियत को नुमाया किया और मुश्तरका पैदावार पर जोर दिया। उन्होंने दोनों ममालिक में दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के मुकाबले में पाकिस्तान की दिफाई सनत बहुत मुस्तहकम है। दोनों ममालिक के वज़रा की 2 तरफ़ा बाहमी मुलाकात भी हुई। दोनों जानिब से दिफा में मजबूत ताल्लुकात के मौक़े और बाहमी ताउन पर बातचीत हुई। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा ने भी मेहमान वजीर को ब्रीफिंग दी और इसके मंसूबों के बारे में बताया। मेहमान वजीर ने वफाकी वजीर की मेज़बानी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बाहमी बातचीत से 2 तरफ़ा बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ में मदद मिलेगी और दिफाई मंसूबों और दिफाई सनतों में ताउन को फ़रोग़ हासिल होगा। अतालवी वज़ीर आज़म पाओलो जेंटिलोनी का कहना है कि रोम और नई दिल्ली को 2 तरफ़ा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए सिफारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहिए। अतालवी वज़ीर आज़म पाओलो जेंटिलोनी का कहना है कि रोम और नई दिल्ली को 2 तरफ़ा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए सिफारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहिए। जेंटिलोनी, जो कि नई दिल्ली में 2 रोज़ा दौरे पर थे, अपने भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी के साथ वफ़द सतही मुज़ाकरात के बाद बात कर रहे थे। इस मौके पर अतालवी वज़ीर आज़म ने कहा, cogliere più e meglio di quanto abbiamo fatto finora. Siamo comunque il terzo paese dell'Eurozona come scambi commerciali con l'India, ma possiamo fare di più. E credo che il rilancio delle nostre relazioni diplomatiche è una grande occasione per fare di più.
दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात हालिया बरसों में ठंडे पड़ गए थे, जिसकी वजह 2012 में तिजारती जहाज की हिफाजत करने वाले 2 अतालवी बहरी फौजियों की जानिब से 2 माही गिरों का कत्ल था, जिन्हें फौजियों ने बहरी कज़ाक समझ लिया था। गुज़िश्ता साल द हेग में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इटली के हक में फैसला सुनाया और भारत से कहा कि वो नई दिल्ली में अतालवी सिफारत खाने में कैद एक अतालवी बहरी फौजी को रिहा करे। दूसरा फौजी पहले ही सेहत के मसाइल के बायस इटली वापस जा चुका है। मोदी के साथ मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में जेंटिलोनी ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर सिफारती ताल्लुकात इक़्तिसादी ताल्लुकात में मजीद इजाफा करेंगे। उन्होंने मजीद कहा, In Italia una situazione economica stabile e in crescita, in un quadro dell'intera zona euro che è finalmente tornato a crescere, e salutiamo come sempre con apertura le possibili collaborazioni e gli investimenti che vengono dall'India. भारत यूरोपीय यूनियन में इटली का 5वां बड़ा तिजारती शराकतदार है और 2016 में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारत $8.7 बिलियन रिकॉर्ड की गई। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी तरक्की और इस्लाहात एहसन इकबाल ने प्लानिंग कमीशन में डिजिटल पाकिस्तान के उन्वान से मुनक़िदा इजलास से खिताब के दौरान कहा कि डिजिटल पाकिस्तान का मकसद नई नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करके इसके मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी तरक्की और इस्लाहात एहसन इकबाल ने कहा कि मौसर मनसूबाबंदी की बदौलत पाकिस्तान में 2013 के बाद न सिर्फ 3G और 4G का आगाज हुआ, बल्कि आज 5G की आजमाइशी सर्विस के आगाज की भी तैयारियां की जा रही हैं। एहसन इकबाल ने प्लानिंग कमीशन में डिजिटल पाकिस्तान के उन्वान से मुनक़िदा इजलास से खिताब के दौरान कहा कि डिजिटल पाकिस्तान का मकसद नई नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करके उसके मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। 3G और 4G की तेज रफ्तार इंटरनेट सर्विस की बदौलत आज पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा फ्री लांसिंग मुल्क बन चुका है। हुकूमत रवां माली साल के दौरान 1 अरब रुपए के बजट के जरिए 1 लाख नौजवानों को IT के शोबे में ट्रेनिंग देगी। हमें पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में एशिया का रहनुमा मुल्क बनाना है। वफाकी वजीर ने कहा कि आज की दुनिया में वही कौमें तरक्की करती हैं जो इल्म और टेक्नोलॉजी में आगे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत विजन 2025 की रोशनी में निजी शोबे के ताउन से इंसानी वसाइल की तरक्की और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की की मंजिल के हुसूल के लिए कोशा है। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत की लैपटॉप स्कीम की बदौलत आज हमारा नौजवान बेरोजगार रहने के बजाय अपने पैरों पर खड़ा होने को तरजीह देता है। वक्त आ गया है कि हम निजी शोबे के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी के मस्बत और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डेटा के मुताबिक चीन की नॉन मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मियों में माह अक्टूबर के दौरान सुस्त रफ्तारी देखी गई। सरकारी डेटा के मुताबिक चीन की नॉन मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मियों में माह अक्टूबर के दौरान कमी देखी गई। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से जारी डेटा के मुताबिक नॉन मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स माह अक्टूबर में 54.3% की सतह पर रिकॉर्ड किया गया, जो कि सितंबर में 55.4%, लेकिन गुज़िश्ता माह में इसी मुद्दत में 54% के मुकाबले में जायद है। इस हवाले से चाइना फेडरेशन ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड परचेजिंग के नायब चेयरमैन काइजिन का कहना था,非制造业之所以有所回落，主要还是建筑业回落的比较明显一些。那建筑业的话，因为10月份以后，特别是东北地区、北方地区，它的这个施工也受到一些影响。另外一个，我们从统计数据也可以看得到，固定资产的投资，也有所放缓。但是从服务业的情况上，还是比较活跃的。खिदमाती शोबा जिसने गुज़िश्ता साल मुल्क की GDP में निस्फ हिस्से से जायद किरदार अदा किया, माह अक्टूबर के दौरान इसके तिजारती सरगर्मियों के अशारिये और नए ऑर्डर्स के अशारिये में कमी आई। तिजारती सरगर्मियों का अशारिया सितंबर में 54.4% के मुकाबले में 53.5% रहा, जो कि गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में फिर भी बेहतर है। NBS के तहत सर्वे सेंटर के शी जाओहुई का कहना था, 本月是在这个11黄金周这个带动之下，与这个大众消费密切相关的服务业实现了一个比较平稳的而且较快的一个发展。其中呢，这个住宿业还有零售业，铁路运输、航空运输，邮政快递、铁路，包括还有这个电信和这个互联网相关的这些服务业，它的这个业务活动呢都是比较活跃的，然后总体的这个业务总量也是保持一个较快的增长。服务业呢，它总体运行还是保持一个比较稳定的一个增长。
पाकिस्तान के 3 पहियों वाले CNG रिक्शे अब जापान की सड़कों पर भी दौड़ते नजर आएंगे। जापान ने पाकिस्तान से ये 3 पहियों वाली सवारी दरामद करने का फैसला कर लिया है। जापान यूं तो अपनी सनती तरक्की की वजह से सबसे आगे है, ताहम अब इसे ऑटोमोबाइल्स की सनत में पाकिस्तान की मदद की जरूरत पड़ गई और जापान ने एक मुनफरिद शय पाकिस्तान से दरामद करने का फैसला कर लिया है। ये शय कुछ और नहीं बल्कि पाकिस्तान के 3 पहियों वाले CNG रिक्शे हैं, जो अब जापान की सड़कों पर भी दौड़ते नजर आएंगे। गो के ऑटोमोबाइल्स की सनत में जापान ने बेशुमार गाड़ियाँ मुतारिफ करवाई हैं, ताहम अब वो सफरी सहूलियात के कम कीमत जराए की तरफ तवज्जो दे रहा है और इसके लिए इसकी नजर इंतखाब पाकिस्तानी रिक्शाओं पर ठहरी है। पाकिस्तान से जापान को रिक्शे दरामद करने वाली इंजीनियरिंग कंपनी का कहना है कि पाकिस्तानी रिक्शों और ट्रक्स पर गहरे रंगों से बनाए गए खूबसूरत नक्शो निगार हमेशा से दुनिया भर को मुतासिर करते रहे हैं और यही वजह है कि ट्रक आज भी पूरी दुनिया में बेहद मकबूल है। याद रहे कि जापान को पाकिस्तानी रिक्शों की बरामद पाकिस्तानी मईशत के लिए एक अहम संग मील साबित होगी, क्योंकि पाकिस्तान में मकामी तौर पर तैयार करदा मोटर व्हीकल्स पहली बार पाकिस्तान से बाहर भिजवाई जा रही हैं। इस दरामद से पाकिस्तान और जापान दोनों की मईशत को बेइंतहा फायदा पहुंचेगा। यूथ फोरम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते हम आपको यूथ फोरम में एक नौजवान जौहर काबिल से मुतारिफ कराते हैं, जो कि अपने अपने शोबों में अपनी मदद के तहत अपना लोहा मनवाने की अहलियत रखते हैं। और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम आपको इन तालिबात का तारुफ कराएंगे जो कि फोटोग्राफी के शोबे में भी बहुत जल्द अहमियत के हामिल बन गए हैं। श्रीनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन एजुकेशन ने हाल ही में वादी कश्मीर में मुतादिद नौजवानों और तख्लीकी जहनों के लिए तस्वीरों की नुमाइश का इनेकाद किया। तालीमी इदारे के सरबराह की जानिब से हर तालिब इल्म को एक थीम दी गई, जिसके मुताबिक उन्हें तस्वीर खींचना थी। फोटोग्राफी के शोबे में मुतादिद नए आने वाले लोगों को तस्वीरें खींचने पर मुनासिब हिदायत दी गईं। आइए जानते हैं इस हवाले से एक तालिबा सना गुलजार का क्या कहना था। मेरे को एक्चुअली बचपन से शौक था काफ़ी फ़ोटोग्राफी का, तो मैं इस कॉलेज आई तो यहाँ पे अर्शद सर मिले जो कि एक आर्टिस्ट है। मैंने इनसे बात की, अपने व्यूज़ शेयर किए, तो इनने मेरे को काफ़ी ज़्यादा गाइड किया यहाँ पे फ़ोटोग्राफी के लिए। तो फिर मैंने अपना प्रोफेशनल कैमरा लाया, तो ऑलमोस्ट अभी तक 100 लैंडस्केप्स वगैरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ़ोटोज़ मैंने लिए हैं। तो अभी भी ये लोग गाइड कर रहे हैं मुझे। तो फिर हमने ये एग्जीबिशन यहाँ पे कॉलेज ने ऑर्गेनाइज़ किया। तालिब इल्म अपना हुनर दिखाने और फोटोग्राफी के आर्ट सीखने के लिए उन्हें प्लेटफॉर्म फराहम किए जाने पर इंस्टीट्यूट के निहायत शुक्रगुजार थे। इस हवाले से एक तालिबा साइमा शेख का क्या कहना था, आइए जानते हैं। उन्होंने यही दिया, एक प्लेटफॉर्म देना चाहा हमें कि जितने भी टैलेंट्स हम में हैं, चाहे हमें फोटोग्राफी के टैलेंट्स है, कुछ और भी जो आर्ट के रिलेट हैं, कि हमें वो जागे और हम आगे स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह कोई प्लेटफॉर्म हासिल कर सके। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में, ये राइट क्लिक का प्रोग्राम, और हमें उसमें अवार्ड्स भी आ गए हैं। कदीम तारीखी इमारतों की फोटोग्राफी मुकाबले में तवज्जो हासिल करने में कामयाब हुई। आर्टिस्ट का कहना था कि इस नुमाइश ने उन्हें अपनी सलाहियत का मुजाहरा करने का शानदार मौका फराहम किया है। और अब एक जायजा एशियाई स्टॉक मार्केट में होने वाली हफ्तावार कारोबारी सरगर्मियों का। एशियाई स्टॉक मार्केट में इस हफ्ते तेजी का रुझान देखा गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जापान निकी इंडेक्स 0.53% इजाफे के साथ 22,539.12, हैंगसेंग 0.30% इजाफे के साथ 28,603.61 पर बंद हुआ, जबकि शंघाई और ताइवान के कारोबारी हिस्से की कीमतों में तेजी का रुझान देखा गया। और अब जानिए करेंसी रेट्स। ये थी अब तक की खबरें एशिया बिजनेस वीक न्यूज में। मिलते हैं अगले हफ्ते मजीद खबरों के साथ। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।